हार्ट टचिंग प्रोमो. Can't wait for India वाली माँ. तो आइए, मौका अब आ गया है, the moment we've all been waiting for, to meet the wonderfully talented cast of this unique new show. Please welcome with a huge round of applause on the screen सुचिता त्रिवेदी, जिन्होंने काकू का किरदार निभाया है, नितेश पांडे who is playing हसमुख, and अक्षय म्हात्रे जो इस शो में रोहन बने हैं. Welcome, congratulations, thank you so much for being here. Thank you. Oh, lovely. What a beautiful promo. I just can't wait to show this to my mother, or just watch it with her really. And सुचिता जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि काकू के बारे में आपके ख्याल, आपकी भावनाएं जरा व्यक्त कीजिए. And how did you prepare for a role like this? Yeah, this is the best role I have ever played in my career, because this is the most purest form of character that an actor can study for. And study bhi nahi, you have to see your own mother, you have to see our producer Kinnari ma'am. There's something that I want to tell about. She told me that her son is going to study abroad, so I'll miss him. So I said, what will you do? Okay, you will miss him, fine, okay. She says, no, I've got his perfume jo wo lagata hai, so I'm going to put that and feel him around me. And I was like, bang on, this is the germ that I can work upon, So yes, and my mother, my mother-in-law, my husband is 50, but she will still wait with khane ka thali for him. So seeing all these mothers around me, it's a global phenomena. It's a wonderful role that I'm playing, and thank you, Soni. As Kinnari ma'am said that I'm allowed to play in the real zone. I'm allowed to perform and not act. So that is something that we all have taken care of, the direction team, and the way the Sony marketing team has cut our promos. Everything is looking so real, so relatable that you just see it and you feel it. So thank you for that. Yeah. Beautifully said. Congratulations. Thank you. तो एक तरफ काकू जैसी माँ की भावनाएं और दूसरी तरफ हसमुख जैसे हस्बैंड एंड फादर की प्रैक्टिकलिटी. तो नितेश जी, ये बताइए कि how much could you relate to your character in the show, and tell us something about Hasmukh and Kaku's chemistry and relationship. Yeah, hi, नमस्कार सब लोग. तो जैसे कि काकू ने भी कहा कि और किन्नरी मैम ने कहा, हम सब ने अपनी माँओं को देखा है जब हम बड़े हुए, और आज की तारीख में एज वी नो कि मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी ये सीरियल अपनी माँ को दिखाऊं तो शायद वो मुझे बड़ी आंखें करके देखेगी, तू भी ऐसे ही करता है मेरे साथ. तो हम सब गिल्टी हैं उस बात के लिए. लेकिन हसमुख जो है, जैसे कि आपने कहा कि प्रैक्टिकल आदमी है, सो आई लुक्ड अप टू माय फादर हु आल्सो बिहेव्ड इन द सेम मैनर. इमोशंस हैं लेकिन दिखाना नहीं है. और हसमुख के लिए मैं ये कहूंगा कि खास करके वो काकू के सामने अपने इमोशंस जाहिर नहीं करता है कि बेटा थोड़ा सा अलग हो गया है, दूर हो गया है, अपनी जिंदगी जी रहा है, अपनी उड़ान भर ली है. उसको ऑब्वियसली बुरा तो बहुत लगा है इस बात का कि बहुत सारी चीजें बेटा कर गया है जो उसके माँ बाप को खबर भी नहीं करी. लेकिन वो काकू के सामने शायद थोड़ा बहुत झिझकता है कि काकू अगर देखेगी कि हसमुख को भी उतना ही बुरा लग रहा है तो शायद उसको और दुख होगा. तो काफी विटी आदमी है, रोमांटिक भी है. जब काकू डिसीजन लेती है कि वो अपने बेटे के पास जाएगी तो हसमुख नाराज है, लेकिन वो जानता है कि एक माँ का दिल उसे बुला रहा है और वो सपोर्ट करता है उसको और वो उसको जाने देता है. Wonderful and really so relatable. जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि we are all feeling guilty, as Ashish ji has also said. So fantastic. Of course, we'd like to know more about Hasmukh as well. But फिलहाल मैं अक्षय से पूछना चाहूंगा कि अक्षय भाई, रोहन is the apple of Kaku's eye, उनके दिल का टुकड़ा, उनकी सारी दुनिया. तो अक्षय और रोहन में कितनी सिमिलैरिटीज हैं?
अक्षय भाई अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. हाँ. Hi. Sorry. Yeah, I was saying कि जब मेरी माँ ने ये प्रोमो फर्स्ट टाइम देखा था तो उनका फर्स्ट रिएक्शन था कि यार ये तो मैं हूँ, ये तो मेरा रोल है. And so yeah, that very much says a lot of things about me as well. And as most of us, even I feel guilty. Like आज भी जब मैं scenes करता हूँ सुचिता मैम के साथ, there's so many things that I can relate to. Okay, like ये जो रोहन है, ये इतना ambitious है, he wants to do so many things in life, and he feels कि वो सब कुछ achieve कर सकता है, और उसे लगता है कि वो अकेले ही कर सकता है, उसे किसी की जरूरत नहीं, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है. और ये गलत है, क्योंकि बच्चा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, अपने माँ बाप के लिए एक छोटा बच्चा ही रहेगा. एंड he should never be reluctant to ask for help, especially from his parents. So yeah, in that way, I definitely relate to Rohan a lot. Wonderful. We'll of course ask you more. बहुत सारे सवाल जो है हमारे मीडिया के जो मित्र हैं वो सब भेज रहे हैं हमें, तो हम बहुत जल्द सारे कास्ट और टीम को सवाल पूछेंगे. लेकिन इससे पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑफ कोर्स शेयरिंग योर इनिशियल थॉट्स. और मैंने जैसे कुछ देर पहले कहा था कि ये शो हम आपको इंट्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन एक बहुत ही अलग अनोखे अंदाज में. तो ये एक सुरीला सा अंदाज है बेसिकली इस शो की भावनाओं को, और इनफैक्ट जिस देश भर में जितनी भी माएं हैं उन सारों की भावनाओं को इनकैप्सुलेट करते हुए एक बहुत ही प्यारा सा थीम सॉन्ग क्रिएट किया गया है खास इस शो के लिए, जिसका नाम है मैं तो माँ हूं. एंड इसे लिखा है दिव्या शर्मा ने एंड कंपोज किया है देवेंद्र भोमे ने, और गाया है एक ऐसी प्लेबैक सिंगर ने हु इज really threaded the nation together and all of our emotions together with her wonderful voice. We will speak to her in a short while, लेकिन उससे पहले मैं ये गाना आपको जरा सुना दूं, इसका वीडियो आपको दिखा दूं. मैं तो माँ हूं. जब तू चले तो हूँ ज़मीं, जब तू उड़े तो आसमां हूँ. है हक तुझे तू रूठ जा, है हक तुझे तू रूठ जा, रूठ जा, रूठ जा, रूठ जा, रूठ जा. है हक तुझे तू रूठ जा, मैं कैसे रूठूं, मैं तो माँ हूँ, मैं तो माँ हूँ, मैं तो माँ हूँ, मैं तो माँ हूँ. Oof, so beautiful. So beautifully written and composed and of course sung by, like I said, somebody who has threaded the nation's emotions together. And she's here, the very beautiful, what a voice, talented and multi-award winning Harshdeep Kaur. Please welcome Harshdeep on the screen. Welcome Harshdeep. Congratulations. What a beautiful song. Another feather in your cap. Thank you so much. Good afternoon to everybody, all the cast, the producers, and everybody involved in the show. Thank you so much for the warm welcome. Honestly, not just as a singer, but as I'm really looking forward to watching the show. तो ये गाने की शुरुआत के बारे में जरा बताइए. How did it come to you? How did you say yes to it? Well, it's a beautiful song. Devendra ji, जिन्होंने गाना compose किया है, he contacted me and he said मैं आपको गाना भेज देता हूँ. So I said, okay, I would like to listen to the song first. And the moment I heard the song, I said, I have to sing this song.
because somehow the song reminded me of my own mom when I was little. And even now, the way she cares about me and she gets worried about me. So I thought I must sing the song. It's such a beautiful song. बढ़िया. एंड इसके ऑफ कोर्स लिरिक्स भी बहुत ब्यूटीफुली लिखे गए हैं, बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन भी है. तो अब आप हैं हमारे साथ, तो प्लीज कुछ लाइनें हमें गाकर सुनाइए. वीड लव टू हियर इट यू नो इन योर वॉइस राइट हियर एज वेल. जी जरूर. इनफैक्ट जब से मैं गाकर आई हूँ, आई हैव बीन हमिंग दिस एट होम एंड पुटिंग माय सेल्फ टू स्लीप. इट्स लाइक अ ललाबाई. जी जी. जब तू चले तो हूँ ज़मीन, जब तू उड़े तो आसमां. है हक तुझे तू रूठ जा, रूठ जा, रूठ जा, रूठ जा, रूठ जा. मैं कैसे रूठूं, मैं तो माँ हूँ, मैं तो माँ हूँ. Thank you. Can't wait to get my mother to hear this. What a beautiful song. Thank you, Harshdeep ji. Thank you so much. और इस ब्यूटीफुल थीम सॉन्ग के साथ एक बहुत ही अनोखा शो आ रहा है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर 31 अगस्त, हर सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे रात को. एंड वक्त अब आ गया है सारी टीम से, कलाकारों से मिलने का और सवाल जवाब का किस्सा शुरू करने का. तो मैं सबको इनवाइट करता हूं स्क्रीन पर. आशीष जी, जयन किन्नरी मेहता, सुचिता त्रिवेदी, अक्षय म्हात्रे, नितेश पांडे एंड ऑफ कोर्स हर्षदीप कौर. we're all here and मीडिया के हमारे जितने भी मित्र हैं, मैं उनको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आपकी स्क्रीन पर एक चैट बॉट है, उसमें आप सवाल टाइप करके हमें भेज सकते हैं, आपका नाम, चैनल, पब्लिकेशन का नाम और जिनसे आप ये सवाल पूछना चाहते हैं, और मैं यहाँ पर वो अपना फर्ज निभा दूंगा, सवाल पूछ लूंगा और जवाब आपको मिल जाएंगे. थैंक यू. तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का किस्सा. सबसे पहला सवाल आया है अंशुल से फ्रॉम दैनिक भास्कर टू सुचिता त्रिवेदी. सवाल यह है कि हाउ डिफिकल्ट और इजी वाज इट फॉर यू टू प्ले द रोल ऑफ काकू, अ मदर, एंड हाउ आर यू गाइज मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग ऑन द सेट्स? आर एक्टर्स डूइंग देयर ओन मेकअप? Hi. So the question number one is that it is how difficult it was for me to perform this character. No, it wasn't difficult for me. It is, I am a daughter. I have seen mothers around me, my mother figures in my life. This is a global phenomena of a mother and her child. And you just see the way माँ मतलब भगवान होती है, वो पूजा, the way a mother loves and is there for the child. मैंने देखा है ये, और ये रोल प्ले करना बिल्कुल, हाँ, ये मुझे इस रोल में हर सीन में मैं ये जरूर I always make it a point to not cheat my emotion. कभी कभी हम पूरा दिन में 10 सीन्स होते हैं, 8 सीन्स होते हैं, ये शो हम 1 साल से जी रहे हैं. So I think that I know my character very well, but every time that I perform, every scene, every small cut, I am my honest best. तो वो करने में मुझे ज़्यादा थोड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि this character is so pure कि यहाँ वो झूठ यहाँ चलेगा नहीं, वो आपकी स्किल चलेगी नहीं, आपको हर एक सेकंड आपको फील करना पड़ेगा वो लम्हा. So me and the makers of the show, our direction team, सब लोग हम लगे रहते हैं कि हर एक लम्हा इस शो का सच्चा हो.
So yes, and second is कि social distancing maintain होती है. हम actors mask नहीं लगाते, लेकिन टेक्निकल टीम है, हमारी मेकअप टीम है, हेयर टीम है, कॉस्ट्यूम टीम है, सब बेचारे पीपी किट्स और मास्क के साथ घूमते हैं. सोशल डिस्टेंसिंग हम सीन ही इस तरह कोरियोग्राफ करते हैं कि जितना सोशल डिस्टेंसिंग हो सके सीन में ही हम वो इनकॉर्पोरेट करते हैं. Lovely. And really hats off to all of those people working behind the scenes, behind the camera to create such wonderful stories for us and, you know, taking so much responsibility of everybody's health and safety. Thank you. अगला सवाल है to J.N. Kinnari Mehta from Sanjeev Mishra of आज हिंदी दैनिक from Lucknow कि ये कैरेक्टर काकू का जो कैरेक्टर है, how different is it from other mothers that we have seen on the small screen before, and is काकू similar to other mothers who pamper their kids? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए प्लीज, एंड अनम्यूट भी कर लीजिए अपने आप को. इट्स द फ्रेज ऑफ द ईयर, डोंट वरी. Kaku is she's a whole character, we say. She is portrayed as a wife, as a daughter, as a mother-in-law. हमने हमेशा या तो जब हम माँ के शोज बनाते हैं तो उसको सिर्फ एक माँ के रूप में देखते हैं. And we forget that a mother is always someone's wife also. And she has actually left her husband behind in Bhuj and traveled to an unknown place where, I mean, when she must have not even traveled like 50 kilometers away from her Bhuj, from her hometown. So we are actually showing for the first time on Indian television a woman who has been a daughter, a wife, and now a mother. So when we begin our story, we see all her likes and dislikes as a complete whole. We don't just see her relationship vis-a-vis her son, कि वो कितनी अच्छी माँ है. नहीं, उसमें ये हुनर भी है. वो एक आर्टिस्ट है. वो वेजिटेबल डाई के कपड़े कैसे बनते हैं वो एडवाइस देती है अपने हस्बैंड को. So we are showing that inherent talent of hers. We are showing how bubbly she is, how naughty she can be. Yes, I'm using the phrase naughty because that's what also a character of mother can be. She's not serious in her approach when she's trying to, give some advice. Today's generation doesn't want an advice in the form or in the package of being a mother. She is a friend. So that's how India Wali Ma stands apart because she believes कि मैं मेरे बहू और बेटों की एक ट्रू फ्रेंड बनूंगी. Wonderful, thank you. हर्षदीप, आपके लिए सवाल है कि while singing this track, while recording it, was it an emotional experience for you? And आपने show promo देखा ही होगा, तो what message would you like to give to all the mothers out there through your song? हर अम्मा, अम्मी, माँ, आई, क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? Well, जब मैं गाना रिकॉर्ड कर रही थी तो मैं खुद भी काफी इमोशनल हो गई थी because the words are so beautiful कि जब तू चले मैं हूँ ज़मीं, जब तू उड़े तो मैं आसमां हूँ. Like how the mother kind of creates a canvas for the child to paint his emotions and to paint his dreams. So that really made me very emotional. और वो मैंने अपनी सिंगिंग के जरिए मैंने बताने की कोशिश की है. And the title in itself is so amazing, इंडिया वाली माँ, कि अगर इसका प्रोमो नहीं भी चलाएंगे और ये टीवी पे देख लिया किसी ने तो वो डेफिनेटली देखने वाले. माय मदर इन लॉ, माय मदर, दे डेफिनेटली गोइंग टू वॉच इट. वो तो जब कोई बच्चा अच्छा गा रहा होता है टीवी पे तभी रोने लग जाते हैं. तो इंडिया वाली माँ देख के तो मुझे एक टिश्यू बॉक्स एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा, मुझे लगता है. Lovely, thank you. तो अगला जो सवाल है that is again सुचिता जी के लिए, which is from Priyanka Singh of दैनिक जागरण, कि how is your relationship with your own mother and आपने उनसे क्या खूबियां आपने inherit की हैं? What have you imbibed from her? My equation with my mother is it's beautiful. मेरी माँ आज भी कहती है अगर बारिश पड़ रही होती है तो सो जा, प्रोड्यूसर को बोल दे कि आज शूटिंग में नहीं आ सकती, बहुत बारिश पड़ रही है, सो जा, आराम कर ले. So she still tells me that. So yes, and मेरी मम्मी जैसे ही किन्नरी मैम ने कहा कि she is very naughty, she is a whole person, and वो I can tell her about everything under the sun. कोई भी मुश्किल हो, कुछ भी हो, जो professional problems या personal problems, I can tell her everything. She Lovely. And clearly, mothers are the friends that are there throughout our lives, and that's the friendship we need. Hanji, sorry, you were saying.
Yeah, and I know I was just saying about Harshdeep. Harshdeep, whenever we are performing on the set, I जैसे ही मैंने कहा कि मुझे बहुत सच्चा performance every scene में देना है, so I don't use the grease screen. So I've requested my producers कि हर बार जब मैं एक क्लोज अप देने जाती हूँ या कोई इमोशनल सीन होता है जहाँ आंसुओं की जरूरत होती है, तो वो आपका गाना ये बजा देते हैं. Thank you, that is really sweet of you. But आपका हंसने का मन करे तो मैं आपको कॉल करके हैप्पी सॉन्ग भी सुनाती हूँ. Lovely. Thank you. अगला सवाल है फ्रॉम स्वीकृति शेट्टी फॉर मिस्टर आशीष गोलवालकर. स्वीकृति is from Ad Gully, and sir, if you could please unmute yourself. Going forward, in what ways do you envisage the changed content consumption patterns of viewers, and how it will impact Sony Entertainment Television's content strategy? Good question. I think this is a question we can have a detailed chat. This doesn't. It won't. I won't be able to answer it in a couple of sentences. It's a quite deeper question. But just because you've asked and for everyone's understanding, see, there has been a tectonic shift, in the way people are consuming content. Because of this entire pandemic and COVID, era, the consumption of people has really changed. The way they consume, the lockdown might not be there, but a large part of this country is still working from home. So, the entire, the way people consume content, it's, if there is anything that has happened, the content consumption has gone up. So there is no threat as such that, all of a sudden people have stopped watching content on television, but, the way to access content is changing. So, there is people still watch, content on television, but now they also have learned in the last 4 years how to access internet on television. The smart TVs have become cheaper. So everything is, changing. And, we are in a kind of a flux currently wherein, everyone is trying to realign. And I think in the next, 1 year or so, all these things will get realigned. So I think there is going to be a lot of change. From Sony's point of view, I think I've always said jokingly that हम तो 15 साल से डिजिटल के लिए कंटेंट बना रहे थे, वो तो डिजिटल अभी आया. So, we are always we're committed to making progressive shows. We've always brought socially relevant themes that are contemporary and, appealing to a larger section of urban India. So I think that we continue to do that. And, for us, fortunately for us, the bridge of, the digital world and the, analog world is kind of coming together. And, it's really helping our viewerships, both, the same content that you see on Sony Entertainment Television goes on Sony Live. So there also we see some real, number of people coming and watching our shows. So I think not much change, but yeah, we'll have to be at it, of what we are doing of bringing socially relevant contexts, to the screen. So that we continue to do. Thank you, sir. And talking about socially relevant themes, अगला सवाल नितेश जी के लिए है from JP अग्रवाल of प्रभु राष्ट्र. वो पूछ रहे हैं कि आप थोड़ा सा elaborate कीजिए कि इस शो का जो social message है, social theme है, उस पे थोड़ा सा आप elaborate कीजिए. What are the social takeaways that people can have? The obvious takeaway is that let's not forget the credibility of our parents and the importance of them in our lives, which we very easily tend to do. चाहे वो उस जरिए हो कि हाँ मैं जरा काम कर रहा हूँ या मैं शूट में हूँ या मैं मीटिंग में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, फिर आप भूल जाते हो, फिर वो अगले दिन फोन करती है. चाहे वहाँ पे हो या उनका जो या ये झिझक जो हम बच्चे जैसे बड़े होते हैं और मैं खुद से कर लूंगा और मुझे अपने माँ बाप की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि ये अपने आप में एक गलत बात है, लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि आप चाहे अपने करियर में उनके बिना या अपने काम में या अपने रिश्तों में उनके बिना आप उस बात को आगे बढ़ा लेंगे,
उस पे कामयाबी पा लेंगे। लेकिन अगर उस चीज की खुशी अगर आपने अपने माँ बाप के साथ नहीं शेयर करी या उनको इन्वॉल्व नहीं किया, तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि अब हम इस बात को नकार नहीं सकते। आपको ये करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको आपकी जिंदगी दी है, ना ही पैदा किया है बल्कि आपको पाल पोस के बड़ा किया है। तो वो एक इज्जत, एक क्रेडिबिलिटी आपको भूलनी नहीं चाहिए। आई थिंक ये इस शो का सबसे बड़ा मैसेज है। Beautifully put. Thank you, sir. Anuj, I just want to add to this. Yes, sir. I actually missed that point. So, जब हम ये शो बना रहे थे तो एक लेवल पे तो स्टोरी है, एक माँ की जर्नी है, to take, to resurrect the, son's life, और उसका जो पथभ्रष्ट और दिशा भ्रमित हो गया है बेटा, उसको सही दिशा में लाना है. I think on a secondary layer, it also addresses the fact that, जब हम बड़े हो जाते हैं और जिस तरह से हमारा पालन पोषण हुआ है, जनरली जो सोसाइटी बोलती है पुरुषों के लिए पर्टिकुलरली कि रोना ठीक नहीं है, क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस, एंड हम दबा के रखते हैं और हम नहीं रोते, हम खुलते नहीं है. हमारे दोस्त फेसबुक में 5-6 हजार 10 हजार शायद मे बी मिलियंस फ्रेंड्स होंगे, लेकिन एक वो व्यक्ति नहीं होता जिसको आप रो के बोलो कि भाई मेरे से गलती हो गई, मेरी वाट लग गई है, राइट, या आई हैव गॉन रॉन्ग, आई हैव फेल्ड. एंड ऐसे, और जो सोशल फैब्रिक जिस तरह से हो रहा है, मटेरियलिज्म की हम बढ़ रहे हैं, ई में सब कुछ हो रहा है. हम आज का ये कॉन्फ्रेंस भी फॉर ऑल द राइट रीजंस हम ई कर रहे हैं, लेकिन एक जो व्यक्ति के साथ जो कनेक्ट है वो वीक होता जा रहा है. हमें लग रहा है कि हमारे साथ में बहुत लोग हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है, बहुत अकेले हैं. ये अकेलापन कपल्ड विद द एम्बिशन दैट वी आर ऑल टोल्ड कि बहुत पैसे कमाओ, बहुत आगे बढ़ जाओ, क्रेडिट कार्ड्स, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसका कॉन्फ्लुएंस जो है, ये कॉन्कॉक्शन है, ये बहुत खतरनाक है. ये दिस इज लीडिंग टू व्हाट यू सी अराउंड. आई डोंट वांट टू नेम, बट अब देखो डिप्रेशन हो रहा है, मेंटल हेल्थ, और ऐसा नहीं अमीर गरीब सब लोग इस चीज से गुजर रहे हैं. So I think this at the secondary level, this is giving a message that it's okay to cry, it's okay to go to somebody who you love, and पेरेंट्स से ज्यादा कौन मतलब आपको बड़ा किया है यार, तो उनको थोड़ी कभी भी ऐसा बोलेंगे कि आप गलती करोगे तो वो बोलेंगे यार तूने क्या बकवास की. No, never will happen, right? So it's okay, और खासकर लड़कों के लिए, that's why our character also is a boy. लड़कियां फिर भी, लेकिन जिस तरह की हमारी परवरिश हमें बोला जाता है कि रोना नहीं है, संभाल, उसमें हम अपनी मेंटल जो कंडीशन है उसकी वाट लगा देते हैं, उसकी we really destroy ourselves, and in the process what ends up becoming is what we all see around us. I think that is very important. अगर आपका कनेक्ट अपने पेरेंट्स के साथ है, अगर आपके घर वाले आपके साथ हैं, it's okay to fail, it's okay to go back to them and say कि मेरे से गलती हो गई, बताओ अभी मैं क्या करूं. So I think वो एक इसका बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे आप देखेंगे कि the mother will bring about that change, so she becomes the catalyst in this. Such a wonderful insight, sir. Thank you so much. और इसी insight का एक जो सार है आप लोगों ने शो में रिलेट किया है. एंड अकेलेपन का सबसे बड़ा जो प्रमाण में दिखा, लॉकडाउन जब हुआ था तो हमें पता चला कितने सारे लोग हमारे देश भर में अलग अलग शहरों में थे रोजी रोटी कमाने, अपने करियर बढ़ाने, और हमें लॉकडाउन जब हुआ तो पता चला कि परिवार के पास जाना है, गाना, अकेला लग रहा है, मैं घर पर रहूं, चाहे नौकरी हो ना हो, बट घर पर रहूं. और ये बात इतने लोगों में, इन लोगों को खास करके बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर जैसे शहरों में हुई है, जो लोग अपने घरों को छोड़कर आए हैं. तो अगला सवाल अक्षय से है, आकांक्षा पाठक ने पूछा है फ्रॉम सनमार्ग कि व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव ऑल किड्स हु स्टे अवे फ्रॉम देयर मदर्स? Like personally speaking, I was staying away from my family since past 2 years, and it's just few months back during the lockdown that I got back home. It's very important. It's very important for like everyone. I would just tell that I know, like just like Rohan, okay, like we are so ambitious, like so many things in life, and we want to achieve everything. And at times it's just okay to just like take a break, to like take a breather, and just like come back to your roots and like be home, be with your family. I know it's a fast world
around, there are a lot of things going around. But for me, personally speaking, like हर एक्टर के लाइफ में ऐसे कुछ रोल्स होते हैं जो बहुत ही स्पेशल होते हैं, जो उन्हें बहुत खुश करते हैं. And this is that one particular role where I feel that I'm so proud of, I'm so privileged to be a part of. And अगर ये जैसे we are talking the other on the set that अगर ये शो देख के अगर वो 3 बच्चे भी हैं जो अपने माँ को कॉल करें या वापस एक बार मम्मी से बस बात करें, घर जाए उनसे लाइक थैंक यू बोले व्हाटएवर, अगर इतना भी कर सके तो इट इज गोइंग टू बी लाइक अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. और माओ की नजर में तो बच्चे फ्रॉम द एजेस ऑफ 0 to 100 सब बच्चे हैं, तो प्लीज कॉल योर मदर. थैंक यू अक्षय. और एक सवाल आया है फ्रॉम श्रबंती ऑफ आनंद बाजार पत्रिका. वो पूछती हैं कि कई बार कहा जाता है, देखा जाता है कि एक बेटे का जो बर्ताव होता है पेरेंट्स की तरफ वो थोड़ा सा बदल जाता है जब शादी हो जाती है. तो इस पे थोड़ी सी टिप्पणी आपकी. मेरी शादी नहीं. हाँ जी, नहीं, बट व्हाट डू यू थिंक? आई मीन you're right candidate for this question. Go ahead. No, definitely. What happens is like when you have like a better half in your life, so आप कहीं ना कहीं बढ़ जाते हो. आपको सबको खुश रखना है, आपको आपके वाइफ को भी खुश रखना है, आपको आपके माँ को भी खुश रखना है. वो एक बैलेंस जो होता है, और इस सब के बीच में एक जो लड़का होता है, ओके, वो कहीं ना कहीं फंस जाता है. And that is very much what happens with Rohan as well. As to like, he wants to please everyone, he wants to make everyone happy. And in this process, he's going through his own struggles that it is so difficult to do that. And at the same time, आप help भी नहीं मांगना चाहते. So yeah, it's you kind of get stuck in that. इंटरेस्टिंग आइडिया ऑल्सो कि क्या इस शो का सीक्वल एक यहाँ पर प्लॉट रेडी हो गया है, पता नहीं, देखी जाएगी. ऑलराइट, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सना फरजीन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन टू जयन किन्नरी मेहता कि आप दोनों माँ बाप हैं. डिड यू टेक एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाइल वर्किंग ऑन दिस शो? I think all the time, no? Every moment, and more so this year, my 18-year-old son is going to London. और एक काफी फनी कह लो एक इंसिडेंट था जब मेरे एक डायलॉग राइटर ने एक लाइन लिखी थी, लंदन गया हुआ बेटा और हाथ में पंडित का लोटा कभी वापस नहीं आता. सबसे पहले ये लाइन निकालो. ये ऐसी लाइन नहीं जा सकती. एंड ही वाज लाइक क्यूरियस कि सच अ ब्यूटीफुल लाइन आई हैव रिटन. आई सेड नहीं, मेरा बेटा लंदन जा रहा है और वो जरूर वापस आ रहा है, और मैं इस तरह का फिलॉसफी नहीं देखना चाहती शो में. So yes, every moment we do relate to this. Yes. So you are getting it like we're getting all the story pointers and all the sequences from our house only. So हर रोज हमें ये देखने को मिलता है between a mother and a son. Wonderful. So it's a very personal show for all of you, and that's beautiful to know, and I'm quite sure कि 31 अगस्त को जब ये प्रीमियर होगा तो it will become a very personal show for the entire country. And I wish you all the very best. वक्त हमारा थोड़ा सा यहाँ खत्म हो गया है तो सवालों का सिलसिला हम यहीं रोकते हैं, लेकिन good luck and congratulations to all of you. मुझे इतना तो पता है कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही, मम्मी से वैसे मेरी रोज बात तो होती है, लेकिन आज थोड़ी सी और बात करूंगा और मम्मी को कहूंगा कि एक इंडिया वाली माँ का एक शो आ रहा है 31 अगस्त हर सोमवार से शुक्रवार रात को 8:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर, और उसे देखिए, सराहिए और जरूर हमें अपना फीडबैक दीजिएगा. तो थैंक यू all of you for making this happen. Good luck for the rest of the road ahead, and stay safe, be healthy. We wish you good times and successful times to all of you, the entire team. और उसी के साथ आज का हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम यहीं समाप्त करते हैं. बहुत बहुत खुशी हुई आप सबसे बात करके. इट्स बीन एन ऑनर टू होस्ट दिस. माय नेम इज अनुज कुरवारा. थैंक यू सो मच. नमस्कार.